you have joined us, and now it is Thank you, now. sir. Thank you. First of all, it is over to Dr. Atul Bedi sir, who is the organizing secretary of this lecture series. Thank you, Who- sir. Actually, we were indulged in some other project yesterday night, so we all That's are why. too tired. No, Uprati sir, Not tired, sir, but too busy this time, actually. but too busy. And Actually, it is really very hectic, undoubtedly. yes, 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 sir. No problem. Thank Now you. recording is on. It's over to Thank you, you. Dr. Atul Bedi sir. Please. Thank you, Dr. Adarsh Pandey. Okay. It's really a proud moment and privilege to welcome Dr. Sunita Verma, Associate Professor, Bachelor Degree College, to this invited lecture series on biological science. This is the second series which SRBS and GPGC Bajpur are organizing in association. So, welcome, ma'am. Thank And you. thank you, ma'am. And now I welcome, now I call upon Dr. Nirupama Dalakoti, our reporter for this session, to formally introduce our eminent speaker with our audience. Over to you, Dr. Nirupama Dalakoti. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. It is indeed a great pleasure to welcome you all on this invited lecture series on biological science organized by Government PG College, Bajpur, in association with SC College, Bajpur, Society for Research and Society for Research in Biological Science. In this inaugural, I am pleased and honored to introduce the eminent speaker of today's lecture, SC College, Department of Botany at Rice Church College. Nita Verma has more than 50 years of teaching experience and has published 25 research papers in journals of national and international level. Nita Verma has visited 3 foreign countries of agriculture. Now I request Ma'am to deliver her lecture on public health and their medicinal use. Over to you, ma'am. Thank you so much for your kind words and greetings to all. The topic of my presentation is herbs and their medicinal importance. My screen is visible? No, ma'am, we can't see अरे your मैम हो screen. ही नहीं. Okay, I am fine. Yes, it is now presenting. The topic of my presentation is herbs and their medicinal uses. The history of medicinal plants is intimately connected with the history of botany. जो हमारा प्रिमिटिव मैन है, जो हमारा अर्ली मैन था, वो भगवान की मर्जी पे रहता था। भगवान की मर्जी पे रहता था मतलब वो सोचता था कि कब हम ये काम करें कि हमें पनिशमेंट मिला है, हमें ये बीमारी हो गई। और जो हमारे पुराने मेडिसिन मैन थे, प्रेस थे, या जो भी जिनको वैद्य बोला जाता था, वो वैद्य नहीं, जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, कहते थे कि आप में बुरी आत्मा आ गई है, और उसको निकालने के लिए वो मंत्र और तरह तरह के वो क्या करते थे, रिचुअल्स क्या करते थे। अगर हम ड्रग प्लांट का रिकॉर्ड देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा अर्ली सिविलाइजेशन है, पुराना जब से हमारी ये मैनकाइंड बना है, तब से हम देखते हैं कि जो हमारा एशियन टाइम से ही प्लांट्स यूज होते थे ड्रग की फॉर्म में। ड्रग की फॉर्म में कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो प्लांट का यूज ह्यूमन जो एलिमेंट्स है बीमारियों को करने के लिए, हमारे बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे बाइबल है, ऋग्वेदा है, इन सब में मेंशन है। और अगर इंडिया में देखें तो इसमें मेंशन है। और अगर हम बाहर में देखें तो इजिप्शियंस हैं, बेबीलोनियन है, सुमेरियंस है, ग्रीक्स है, रोमन्स है, उन सब ने अपनी मटीरिया मेडिका बनाई हुई थी। मटीरिया मेडिका का मतलब है वो मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि कौन से प्लांट्स हमारे किस बीमारी को क्योर करने के काम आएंगे। जो इजिप्शियंस की टेक्स्ट बुक है पेपरी, जो उन्होंने 1600 साल पहले लिखी थी, वो अभी भी न्यूयॉर्क में मेडिसिन में रखी हुई है। जो हमारे जो ग्रीक्स हैं, आजकल जो हम प्लांट्स को यूज कर रहे हैं वो ड्रग्स के लिए, वो बहुत पहले से उससे फेमिलियर थे। ये हमें कैसे पता चला? ये इन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो जो हिपोक्रेट्स है, इनका 460 से 370 बीसी, अरिस्टोटल है, थियोफ्रेस्टर जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं,
प्लाइनी द एल्डर, डायोस्कोरिडेस एंड गैलन, सबका अगर टाइम आप देखें तो इतने साल पहले से हम जानते थे प्लांट्स का यूज। इन्होंने क्या किया, जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, हर हर्ब का, हर मतलब वो प्लांट जिसका मेडिसिनल वैल्यू है उसका उन्होंने नाम लिखा, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिस्क्राइब किए और उनका डायग्राम बनाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है और हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर उससे अगर हमें कोई दवाई बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, किस क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा, ये सब बताया। इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में वो हिपोक्रेट्स को जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, अभी तक तो हम ये मानते थे प्रिमिटिव में कि बीमारी हमें हो रही है क्योंकि हमारे पापों की वजह से या कोई बुरी आत्मा की वजह से। इन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि बीमारी का साइंटिफिक रीजन क्या है। इसलिए अभी भी जो डॉक्टर एमबीबीएस के ग्रेजुएट होते हैं तो वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री। जो डायोस्कोरिडेस है इन्होंने मटीरियल मेडिका लिखा, जो कि कब 1600 सेंचुरी पहले से अभी भी इसका सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर किसी को देखना होता है तो वो ये देखते हैं। इसके बाद जब हम, अभी मैं आपसे मेडिसिनल प्लांट्स की हिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ, इस पे जो पैरासिलस है इनका ईयर है 1493 से 1541। इन्होंने सबसे पहले बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन का ऑफ सिग्नेचर का क्या मतलब है। अगर ये आप फिगर देखें तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये पोमीग्रेनेट का फ्रूट है, उसमें मैंने वो एक पील निकला हुआ है, उसमें आपको दिखता होगा जो इसके अंदर के सीड हैं, ये हमारा जो दांतों का डेंचर होता है, दांतों वैसे दिख रहे हैं। क्लियर है ना, ये आपको दिख समझ में आया। जो पहले ये था कि भगवान ने क्या किया, क्रिएटर ने हर प्लांट के ऊपर एक साइन बनाया है जिसको बोलते हैं सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कि उस प्लांट को हम किस काम के लिए यूज करें। जैसे पोमीग्रेनेट अनार है, उसको हम डेंटल डिजीजेस के लिए करें क्योंकि उस पर वैसे निशान बने हुए हैं। अगर प्लांट की हार्ट शेप लीव है तो उसको हम कार्डियक डिसऑर्डर के लिए करें। अगर कोई लाल रंग का है जैसे बीट रूट है तो उसके लिए हम ब्लड टॉनिक के लिए यूज करें। अगर वॉलनट है उसमें न्यूमरस इन्वेजिनेशंस हैं, कन्वोल्यूशंस हैं, तो उसको हम ब्रेन डिजीज के लिए यूज करें। और इसमें सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है, ये प्लांट है मैंड्रेक प्लांट। अगर आप ये देखें, ये प्लांट का फिगर है, ये किसी ह्यूमन बॉडी का फिगर नहीं है। इसका अगर बोटेनिकल नेम देखें तो मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम है, इसकी फैमिली सोलेनेसी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे जो लोअर पार्ट है इसका फ्लैशी एंड फॉग्ड जो रूट है प्लांट के, ये लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन फिगर से मैच करते हैं। और ये बहुत एफिकेशियस मतलब होता है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम का है। किसके लिए, अगर इसका डिकॉक्शन का मतलब काढ़ा, अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालें या वाइन में बनाएं और इसको हम देते हैं तो ये एनेस्थीसिया का काम करता है। और इसमें बाद में अगर देख, बाद में पहले तो ये था कि डिकॉक्शन यूज करेंगे एनेस्थीसिया का काम करेगा, लेकिन जब इसमें फाइटोकेमिकल स्टडी हुई लेटर ऑन तो ये पाया गया कि इसमें ये केमिकल पोडोफाइलिन, मैंड्रोगोनिन और हाइसोसिन है, जिसकी वजह से इसमें स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। अब ये मैंने आपसे डिस्कस किया हिस्ट्री, हम कैसे जो प्लांट्स का ये हुआ कि उनका हमने यूज करना शुरू किया मेडिसिनल वैल्यू से, डिफरेंट लिटरेचर को कंसल्ट करने के बाद ये रिपोर्ट कंपाइल की है। इसमें हमने ये बताया है कि कोई भी जो मेडिसिन है हम उसको ड्रग कब कहते हैं। ड्रग और मेडिसिन सिनोनिम की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन ड्रग जब हम इसको कहते हैं ड्रग है, क्यों, जब वो क्या करती है किसी डिजीज को क्योर करे, पेन को करे, तो हम उसको ड्रग कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम ड्रग्स को निकालते हैं। वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है। और जो बॉटनी की ब्रांच है जो डील करती है ड्रग प्लांट से, उसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। और एक होता है उसकी स्टडी करना। अब वो ड्रग का एक्शन क्या है, वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। हमारे नेचर में खूब सारे प्लांट्स हैं और खूब सारे हमारे उनसे हम एक्सट्रैक्ट निकाल के, प्लांट से फाइटोकेमिकल निकाल के हम ड्रग्स बना रहे हैं। लेकिन ये शुरू में तो ये हमारे वैद्य हैं ये सब क्या करते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, जब सिंथेटिक ड्रग्स आने शुरू हुए तो क्या हुआ, इनका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस कम हो गया। कि भाई सब लोगों ने सिग्निफिकेंस क्यों कम हो गया वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्यों कम हो गया।
लेकिन जब सिंथेटिक ड्रग्स आने लगे तो लोग इन पे डिपेंडेंट कम होने लगे, और उससे क्या हुआ, जो हम ड्रग्स बना रहे थे प्लांट से, जैसे रोवल्फिया है, इसको हमने यूज किया ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, पोडोफाइलम है कैंसरस ट्यूमर के लिए, एलॉय हाइपरटेंसिव एजेंट है, और जो सेप्रोजिनिन है इसको हमने डायोस्कोरेसी से निकाला है, और अगेवेसी फैमिली का नाम है, इसको हम कन्वर्ट किया कॉर्टिसोन में, टेस्टोस्टेरोन में, एस्ट्रोजन में, जो कि यूज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और कंट्रासेप्टिव पिल्स में। जो हमारी एंशियंट मेडिकल साइंस है, हम जिसको आयुर्वेदा कहते हैं, इसमें और उसमें देखिए, जो मैं कह रही थी मैं आपसे डिस्कस, दोनों में अंतर ये था सिंथेटिक ड्रग में और जो हम लोग हर्ब्स को यूज करते थे, उसमें ये अंतर था कि जो आयुर्वेदा है वो संपूर्ण होलिस्टिक उसको कंसिडर करता है। अब जैसे हमारे सर में दर्द है, अपने पेन किलर लिया, तो हम एक लोकलाइज है कि सर में दर्द है इसलिए हम वो लेंगे, लेकिन आयुर्वेदा जो हर्ब्स यूज करते हैं उसमें वो ये नहीं कहता है, वो ये कहता है कि हम पूरा का पूरा होलिस्टिक बॉडी का इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जो हमारा इंडिया का जो लिटरेचर है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, आज तक इनकी इम्पोर्टेंस वैसी की वैसी ही है, क्योंकि उस समय में उन्होंने इतना उस पर काम किया हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब ये हुआ कि भाई हम लोग सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ क्यों गए, सिंथेटिक ड्रग्स का जाने के पीछे कारण ये था कि जो इतने हर्ब्स है सबको नॉलेज भी नहीं है, उनका एक्शन क्या हो रहा है उतना जानकारी भी नहीं है, और इनकी पॉपुलेशन की सरप्लस वो भी नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ कि हमने सिंथेटिक ड्रग्स के पर यूज़ करने शुरू किए। लेकिन जब हम लोगों को सिंथेटिक ड्रग्स से साइड इफ़ेक्ट पता चलने शुरू हो गए कि इनका ये इफेक्ट साइड इफेक्ट होता है, तो हम वापस अपने हर्ब्स की तरफ आ रहे हैं। जैसे कोविड-19 में देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि आप भारतीय जीवन शैली को अपनाइए। भारतीय जीवन शैली में जो हम जड़ी बूटी या जिसको हर्ब्स कह रहे हैं, उनका उपयोग हम दोबारा से करने लगे हैं। हम लोग उस पे क्या कर रहे हैं, दोबारा से बैक हो गए हैं उसी दोबारा अपने इंडियन कल्चर पे। जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप ऐसे केरला में जाइए, ऐसी जगह पे जाइए, वहाँ पर अगर जाके वेजिटेशन देखिए तो ऐसे लगेगा किसी आप बोटेनिकल गार्डन में आ गए हैं। स्पाइसी कॉन्डिमेंट्स इतना क्लियर कट दिखता है कि आप उससे एकदम से वो हो जाएंगे इम्प्रेस कि भाई हमारे कंट्री में इतना अच्छा ये है प्लांट्स का कलेक्शन है। बाहर की कंट्रीज में जाइए तो आपको वो सब नहीं दिखता, इतना अच्छा वेजिटेशन। अब मैं आपको एक एक प्लांट के बारे में बताऊंगी कि जैसे जर्नल जर्नल है बहुत, जैसे हम एलोवेरा यूज़ करते हैं। एलोवेरा क्या है, उसकी फैमिली लिलिएसी है, और इससे जो अंदर के लीव्स पे ल्यूसिलेटिनस सैप होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। आजकल ये पतंजलि के फूल मिलते हैं एलोवेरा पीने के लिए मॉर्निंग में, इससे ये परगेटिव का काम करता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है इफ़ यू अप्लाई दैट डायरेक्टली ऑन द स्किन। और ये दूसरा है एसाफिडिटा, ये जो जिसको हम हींग बोलते हैं, ये हमारे इंडाइजेशन में काम आता है, इसका नाम फेरुला है। और नेक्स्ट है बेलाडोना, जिसको एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का नाम है, फैमिली सोलेनेसी है। इसके ड्राइड लीव्स या टॉप ऑफ द प्लांट हम यूज़ करते हैं, और उससे हम एट्रोपिन ड्रग बनाते हैं जो कि हमारा आई को डायलेट करने के काम आता है। और ये क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एल्कोलाइड है, एट्रोपिन, जो कि ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस है। ब्राह्मी, जिसको हम शंखपुष्पी भी बोलते हैं, और ये इसकी स्पोरोफुलरेसी फैमिली है, इसमें एल्कोलाइड होता है ब्राह्मीन, जो कि हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देता है। और जो इसे हम जो ड्रग बनाते हैं वो हमारे नर्व्स के लिए और मेंटल डिसऑर्डर के क्योर करने के काम आती है। नेक्स्ट प्लांट है कैनब, जिसको हम भांग बोलते हैं हिंदी में। इसको हम यूज़ करते हैं जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उनको पेन के लिए और उनको डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट है सिम्बोपोगन, जो ये पोएसी का है, जिसको हम लेमन ग्रास भी बोलते हैं। इससे हम ऑयल निकालते हैं जिसको हम एज ए मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं कि हमें बीमारी ना हो, मलेरिया वगैरह। ये है साइलियम, जिसको आप लोग इसबगोल सब लोग घर में बोलते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं डिसेंट्री के लिए, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, और जो अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ट्रबल्स हैं उनको क्योर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये एफिड्रिन है, इसमें जो एल्कोलाइड है वो ओवरऑल नर्वस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक करने के काम इसमें आता है।
आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि अश्वगंधा अश्वगंधा, और ये इसका नाम है विदानिया सोमनीफेरा, ये सोलेनेसी का है। और जो जेरियाटिक्स का मतलब है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए ये टॉनिक का काम करता है, उनको इसको पीना चाहिए। दालचीनी हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्पाइसेस में, हमारे खाने में इसका बिना खाना नहीं बनता, तो इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। ये कॉन्डिमेंट डेफिनेटली मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कॉन्डिमेंट के लिए काम आता है। और ये डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग और नोजिया में भी इसका यूज़ होता है। चिरैता है ये, इसकी हम लोग चिरैता को हम लोग ये फैमिली इसकी ये है, इसको जो ड्रग है वो चिरैता खिलाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रूट है, और इसको हम फीवर और डायरिया में यूज़ करते हैं। और डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, जैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंडाइजेशन मतलब जैसे आज हुआ, और जो लॉन्ग का बहुत दिनों से दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एलम सेटाइवम जिसको हम लहसुन बोलते हैं, ये एरोमेटिक है, ये स्किन स्टमक अल्सर में, और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है और बॉवल फॉर्मेशन सही नहीं हो रहा तो हम उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गिलोय, आप लोग गिलोय को जिसको अमृत फल, अमृत बेल भी कहा जाता है, इसकी फैमिली है मैनिस्पर्मेसी। इसका जो स्टेम और जो इंटेक्ट बार्क होता है उसको हम लोग आजकल काढ़ा बना रहे हैं, सब लोग काढ़ा में कहते हैं ना गिलोय डालिए, ये टॉनिक का काम भी करता है, और बहुत जो पुराना फीवर होता है उसको काम करने के काम भी आता है। नेक्स्ट है जिसको कैमेला कहते हैं, इसका जो फ्रूट है मेलोटस का, इसको हम यूज़ करते हैं। और जो नेक्स्ट है जो प्लांट का नाम है वो है ओपियम। ये ओपियम जो है ये पेपावरेसी का है। इसको बोटेनिकल नेम देखा जाए तो इसको बोलते हैं पेपावर सोमनीफेरम। इससे जो हम ड्रग यूज निकालते हैं वो आप लोगों ने सुना, जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको अनबियरेबल पेन होता है उसको मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो यहाँ इसमें से बनते हैं। टर्मरिक सब लोग घर में यूज़ करते हैं। इसका नाम करकुमा लौंगा है। इसमें एक फाइटोकेमिकल होता है कर्क्यूमिरिन, जिसका ये कार्बोनेटिव भी है और ब्लड प्यूरीफायर का काम भी ये करता है। ये वसाका है। इसके जो आधा थोड़ा आप लोगों ने इसको आधा थोड़ा कहते हैं, अकेंथेसी का मेंबर है। ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, जैसे किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो हम उसमें इसको यूज़ करते हैं। आंवला, आंवला जो है इसका सिग्निफिकेंस आजकल भी बढ़ा हुआ है, कह रहे हैं कि आंवला खाइए, क्यों खाइए, क्योंकि विटामिन सी का ये रिसोर्स है। सबसे खास बात है जो आंवले की जो मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें जो विटामिन सी है अगर आप इसको किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो वो अवेलेबल रहता है। चाहे आप इसको हॉट पिकल बनाइए, चाहे इसका आप एज ए मुरब्बा बनाइए, चाहे इसका जूस पीजिए, या जो भी जिस भी फॉर्म में आप यूज़ करते हैं, तो इसका जो मेन जो इसका केमिकल है, जो फाइटोकेमिकल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसका इसलिए और ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक्लिप्टा एल्बा है, इसको हम लोग अपने कहते हैं कि बालों में लगाए तो काले हो जाएंगे। इसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मिला के लगाया जाता है, तो हमारे बालों में जो हम लोग डाई लगाते हैं केमिकल डाई, उसका हमें ड्रॉबैक है, इसको लगाने से हमारे बाल में डाई का काम करता है। और डाई में जब एक्लिप्टा के साथ हम ये हीना मिलाते हैं, प्लसोनिया इनामिस, तो ये हमारा कंडीशनर का काम भी करता है, टोनिक का काम भी करता है, और प्लस ये हमारे बालों को डाई करता है। जो लास्ट है वो है सैफरन, जिसको हम क्रोकस सटाइवस कहते हैं, इसकी फैमिली रिरेसी है। ये डायग्राम स्पेशली मैंने आपके लिए नेट से लेकर इसमें डाला है। इसमें जो ये इतना महंगा क्यों आता है, ये सबसे सैफरन है, केसर जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत महंगा आता है। सबसे खास बात जो वो है ना, ये इसका स्टिग्मा है जो मैंने अलग से स्टोर करके आपको दिख रहा होगा, ये यूज़ करते हैं। तो इसकी पिकिंग और इसको निकालना जो ये लेबर कॉस्टिंग है, इसमें बहुत लेबर लगता है, इससे इसकी कॉस्ट है। इसको फिर ड्राई पाउडर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर कलरेंट यूज़ करते हैं। और इसको हम वेरियस प्रिपरेशन जो भी घर में, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो ये मैंने आपसे सारे ड्रग प्लांट्स को जो मैंने सब हर्ब्स को आपसे डिस्कस किया, तो जो भाई हम ये कह रहे हैं कि आप गिलोय पीजिए, विटामिन सी खाएँ, ये एलोवेरा का डालिए, आप ये करकुमा डालिए, हल्दी डालिए, आप आंवला खाइए।
लेकिन जो ये हर्ब्स हैं डेफिनेटली इनमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं बेनिफिशियल है। लेकिन मैं एक पॉइंट ये कहना चाहती थी कि हमें जो आयुष की एक वेबसाइट है, वो लोग क्या करते हैं, वो हमें जैसे हमें काढ़ा बनाना है, हमें हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए, गुड फॉर इम्यूनिटी, कि हमारे डिजीज रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी और वो हमें बीमारियों से बचाएगी। लेकिन हमें ये नहीं, अगर मेरी एज 60 साल की है, अगर मेरी एज 50 साल की है, अगर मेरा वेट 100 है या 50 है, तो जो ये फाइटोकेमिकल्स हैं इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। इनको हमें एक पर्टिकुलर मात्रा में और वो लेके तभी हमें पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन है उतना डाल के उसको पी ले। तो मेरा ये कहना है कि जो फाइटोकेमिकल्स का अभी तक जो हमारा काम हुआ है, उनका काम मुझे लगता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होना चाहिए। उनका एक्शन हम देखें, जो हम ले रहे हैं, फिर वो उसने जाके उस फाइटोकेमिकल ने जाके हमारे किस ऑर्गन या किस टिश्यू पे क्या इफेक्ट किया, ये हमारा इसको मेरे अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इतना हम लोग यूज़ करते रहे हैं, हमारे पुराने लिटरेचर में मेंशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमें, मुझे लगता है कि इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी करना चाहिए, जिससे जो ये मेडिसिनल जो हर्ब्स है उसकी जो स्टडी है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी। इन वर्ड्स के साथ थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। और अब अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, हाँ यस सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। मैम कौन सा मेडिसिनल प्लांट घर में लगा लूं गमले में, जिससे मुझे फायदा भी होता रहे और उसका इस्तेमाल भी होता रहे, घर में सर भी सबसे, इस्तेमाल होता हाँ रहे हाँ, सबसे पहले सर और मैं ये आसानी सजेस्ट, से हो, हाँ आसानी से हो भी जाए। हाँ हाँ ये सर, एक 2 प्लांट्स आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया सर। एक तो तुलसी का पेड़ लगा लीजिए आप, है ना। तुलसी का पेड़। हाँ, और सर एक एलोवेरा का लगा लीजिए, वो गमले में बहुत ज्यादा उसका प्रोपेगेशन होता है, बहुत ज्यादा। और दोनों ही अच्छा आपके लिए बहुत, हाँ, वो है, क्या बोल रहे हैं, यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है अच्छा। दोनों ही। और सर ये भी कहूंगी, अगर आपका बड़ा घर है तो सर आप वो भी लगा ले सकते हैं, नीम का भी लगा सकते हैं, है घर ना। तो काफी बड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर आप आप गमले में मुझे से देख तुलसी और वो के लगा लगता लीजिए। होगा मैं। सर गमले में तुलसी और वो है। अच्छा, तुलसी तो खैर लगा रखी है। हाँ लगी होगी सर। हाँ हाँ, तुलसी लगी हाँ, हुई है, और उसको सर जो तुलसी आप लगी हुई है। बनाते हैं ना काढ़ा, उसमें डाल के चलिए पीजिए ठीक। तो फायदा करेगी सर। काढ़ा दोनों टाइम पी रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने सोचा कि कोई हाँ ऐसे ऐसा भी प्लांट हो जो सर, ये सर समय आप और ये टीनोस्पोरा भी लगा इनकम सर, आपको बहुत आदर्श मिलता है। सर, आप टीनोस्पोरा भी लगा सकते हैं, जिसको है ना, जी वो भी सर। लगा सकते हैं। हाँ गमले में हाँ, दस गमले बोरा। में सर हमारे घर में लगा हुआ है। गमले, हम तो सब फ्लैट में रहते हैं, तो टेरेस पे हमने लगाया हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया हाँ। ग्रो कर रहा है। और सर वैसे ही लग जाता है, अब उसकी डंडी अच्छा लगा अच्छा दीजिए लग अच्छा जाएगा, अभी लगा अच्छा दीजिए अच्छा बहुत जल्दी। अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, सुनीता थैंक यू मैम, सर। मैंने भी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ हाँ हेलो जी, जी सुनीता अभी मैम। हाँ सुने। हाँ, मैं भी एक जानकारी चाह रही थी हाँ आपसे कि जो तुलसी का हाँ पौधा है, हम लोग चाय में डालते हैं हाँ तुलसी, हाँ, तो उसकी किसी ज्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी चाहिए क्या? हाँ यही यही तो मैं इम्फेसाइज कर रही हूँ, यही मेरा हाँ, पॉइंट है आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है, मैंने इसीलिए तो लिया क्योंकि मैंने लीव्स आपने डालनी चाहिए उसमें। 3-4 मैक्सिमम। देखिए जो, और हाँ उससे ज्यादा नहीं। देखिए जो मेरा पॉइंट था वो यही है कि इसको टॉपिक को लेने का, कोविड-19 में आप देखिए सब जगह यही सुन रहे हैं कि आप इसी का हाँ, काढ़ा पीजिए, उस चीज का काढ़ा पीजिए, हल्दी बन, लेकिन कितना खाएं, है हाँ, ना। और मैं यही आप, हाँ, चीज है कि कितना खाना है उसे। कितना खाना है, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हर एक की ह्यूमन बॉडी का किसी भी केमिकल से रिएक्शन वेरी करता है। हम्म। जो मुझे नुकसान नहीं कर रहा, ये जरूरी नहीं कि वो आपको नुकसान ना करे, हो ये सकता है आपको ज्यादा नुकसान करे, या हो सकता है आपको ज्यादा फायदा भी कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी क्वांटिटी, जो आयुष है उसकी साइड पे डला हुआ है, यही अच्छा, मैं कहना ये चाहती हूँ। जो बच्चे हैं उनको कितना देना चाहिए, उनको देना उनको चाहिए या नहीं, उनको देना चाहिए उसका डिकॉक्शन, जैसे ऐसा कहते हैं तुलसी चबानी नहीं चाहिए, उसमें आर्सेनिक होता है, ये हाँ, आपने आर्सेनिक सुना होगा। होता है। तुलसी का पत्ता नहीं खाते हैं ना, इसलिए नहीं खाया हाँ हाँ, जाता। हर एक के पीछे आर्सेनिक भी साइंटिफिक होता है। जो हमारे पुराने लोग करते थे ना,
उनके साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना, उसको कहते चबाना नहीं चाहिए, उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया है। हाँ, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है, हाँ उसके पीछे रीजन यही है। आप उस पे एक तुलसी का पत्ता डालिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक जो फाइटोकेमिकल है उसका डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि बेनिफिशियल है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। जनरलाइज ना किया जाए, जनरलाइज मतलब सबके लिए वो अच्छा उतनी ही क्वांटिटी में हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये मतलब। मैम आपने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है, बहुत हाँ इसलिए, बढ़िया। हाँ मैंने सिर्फ इसलिए किया, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी ना, जो मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, हाँ, तो आप लोग को और अच्छा लगेगा। इसमें भी हमें बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, हाँ for हाँ such a थैंक nice यू। and informative lecture. और स्टूडेंट्स और हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा ये। हाँ तो थैंक यू। इससे नॉलेज मिली कि कितना कुछ हमें यूज करना चाहिए। हाँ थैंक यू सो मच। अतुल सर, आप क्वेश्चन लेने स्टूडेंट्स अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आपने इतने इजी वे में बता दिया मैम, कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं मैम। हाँ ये बात तो मैंने इसलिए बताया कि बच्चे समझ पाए, इसीलिए। और आप नहीं मेरा मैम, बहुत वाकई मैडम आप बहुत अच्छा बताती हैं, वाकई बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप, इसमें थैंक यू कोई शक सर। नहीं। सर मैं अपना बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो मैं पढ़ाती हूँ ना, बहुत हम्म। बहुत वो आपको अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक नो क्वेश्चन नाउ फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। So, on behalf of SRBS and DPGC College Bajpur and SS College Shahjahanpur, I thank you, ma'am. And थैंक यू if सर। I would like to call Dr. Atul Uperi sir if he is here to formally say a vote of thanks. Nirupama ma'am, क्या प्रति सर है नहीं वहाँ पर? नहीं नहीं, मैं हूँ सर, मैं हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। अच्छा अच्छा, आप हैं? ठीक बिल्कुल है, सर, बिल्कुल तो मैडम का धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए आप। बिल्कुल। एक तो ये बहुत टफ काम है, इतना अच्छा लेक्चर के बाद इसका धन्यवाद तो ज्ञापित नहीं हो सकता, लेकिन बस कोशिश ही कर सकता हूँ सर। On behalf of SRBS, on behalf of my college and on my own personal behalf, I thank Dr. Sunita Verma for delivering such a informative and very well planned lecture. This lecture was in fact on the history of the medicinal plant. ये इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर इसलिए क्योंकि जो हमारे ठीक है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको हम लोग अक्सर हमारी मॉडर्न नॉलेज से हम लोग लिंक नहीं कर पाते, और आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही एक ही बार में लिया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैम आप हमसे लगातार जुड़ेंगे आगे और आपसे काफी हम मिलेगा। थैंक यू मैम। Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much, organizers, for giving me this opportunity to interact with the students. And I would like to present more papers. Thank you. Thank you all. धन्यवाद।